digital signature. So before we understand digital signature, first understand one basic thing. Suppose in the physical world, when we sign on paper, our signature proves two things. What are the two things? First, that we are the person who signed the document, and the second, that we accept the content of the document, right? So in the digital world, documents are not paper based, they are basically electronic. So we need an electronic method to prove identity and authenticity. So this electronic method is known as digital signature. A digital signature is not an image and not a scanned signature. You have to keep this point in mind. Digital signature is not an image and not a scanned signature. It is basically mathematical and cryptographic method that proves who signed the document and whether the document was changed after signing. Okay, so in India, digital signatures are legally valid under the Information Technology Act 2000. So, is it clear the difference between paper world and digital world? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. 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 Okay, right. So next is your digital signature versus scanned signature. So many people think that pasting a scanned signature is the same as digital signature. This is actually completely wrong. Scan signature is only a picture. Anyone can copy it, paste it, or they can misuse it. So there is no security and no legal protection, you can say. But digital signature, if I say, on the other hand, is encrypted. So it is linked to the signer's identity using cryptography. So are you aware about these terms, encryption, decryption, cryptography? Um, Ma'am, can you please ma'am, explain them? That would be better. मैम बेसिकली जो स्कैन सिग्नेचर होता है वो जैसे हम कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हम अपना नॉर्मल सिग्नेचर जो करके उसको स्कैन करवाते हैं वो होता है स्कैन सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर वो होता है जो हमारे किसी भी आइडेंटिटी से या हमारे नाम से जो खुद कंप्यूटर क्रिएट करता है और वो फिर उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है और वो अलॉट हो जाता है हमारे नाम पे। जैसे बेसिकली गवर्नमेंट के लिए अलॉट होते हैं कि वो हर पेपर पे खुद सिग्नेचर नहीं करते, उनका डिजिटल सिग्नेचर ही चलता है। यस, एग्जैक्टली। उसको कोई मिसयूज नहीं कर पाता है, ठीक है? कोई अगर उसमें चेंजेस ट्राई भी करता है, वो भी उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो बेसिकली ये लीगल ऑथेंटिसिटी के लिए होता है, आपका वैलिड प्रूफ होता है, ठीक है? तो इसमें स्कैन कॉपी में बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली आप एक स्क्रीनशॉट लेकर या स्कैन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट जो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, दैट इज नॉट डायरेक्टली रीडेबल टू एवरीवन, ठीक है? उसको जैसे स्टार 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 की फॉर्म में आपको विजिबल होगा, डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में नहीं होता कि उसको कोई भी मिसयूज ना कर पाए। दैट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। So digital signatures are is encrypted form. It is linked to the signer's identity. Signer की identity के साथ वो linked होते हैं by using cryptography. If Ma'am, prove there is करने की one जरूरत, example. There is one example of it like आधार कार्ड में जैसे होता है तो वो हम कहीं पे भी साइन करते हैं तो उससे उठा के वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बिल्कुल ठीक है। yes, exactly. आजकल मैम देखो राहुल ने डिजिटल, ना अपनी ना स्क्रीन ऑन की हुई है शायद।
राहुल Yes, Rahul, मैं please आपको stop sharing, please. Okay, I have to reshare my screen. Just a minute. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's will. यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Now visible, ma'am. Okay, sorry, I lost connectivity. सो डिजिटल सिग्नेचर, अभी जैसे हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड की, किसी ने अभी बैंक में अपना एड्रेस अपडेट कराया है? इज देयर एनीवन? No, ma'am. देखो, अगर बैंक में आपने एड्रेस अपडेट कराना है ना, आज के टाइम में आपके सिर्फ बायोमेट्रिक होती है, आपको उनको एड्रेस, लेटेस्ट एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आधार से अपने आप एड्रेस अपडेट कर देता है कि आपका एड्रेस ये है, और साथ ही साथ जैसे ही आपने वहां पे अपडेट कराया, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा योर अपडेटेड एड्रेस। तो आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी मींस पेपर पेन की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, so we were discussing about digital signature, that is the important concept of digital world. So कहाँ पर यूज होता है? यूनिवर्सिटीज में बेसिकली यूज होता है, फंडिंग एजेंसीज में, गवर्नमेंट पोर्टल्स में। ओके, गवर्नमेंट पोर्टल्स बेसिकली नेवर एक्सेप्ट स्कैन सिग्नेचर्स एनीमोर। ओके, so how it works? Let me share next. This is the flow, how digital signature works. So now let us understand how a digital signature actually works. What are the steps? So first, a researcher or any scholar or any person applies for a digital signature certificate, that is DSC, that is from an authorized certifying authority. You have to get your DSE. DSC is digital signature certificate. कहाँ से मिलेगा आपको? authorized certifying authority से. Second is the authority verifies the researchers or any persons Excuse me, ma'am. who have applied. Yes. Hello. Ma'am, ये Yes. Yes, please. डिजिटल सिग्नेचर, मैम ये डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए अप्लाई कहाँ पे करना होगा? ऑथोराइज सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, जैसे आपके आधार सेंटर्स होते हैं, ऐसे डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथोराइज्ड
सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होते हैं जो इनको क्रिएट करते हैं। ओके, सो द अथॉरिटी जो होती है वो वेरीफाई करेगा लाइक जिसने अप्लाई किया है, अप्लायर्स आइडेंटिटी यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स लाइक योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर एड्रेस प्रूफ। After verification of your documentations, so third step, once verification is complete, the digital certificate is issued and installed on a USB token or your system. ठीक है, आपको एक पेन ड्राइव की तरह एक डिजिटल सिग्नेचर का आपको एक यूएसबी टोकन मिलेगा, उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर फीड होगा। Then fourth, when the researcher or person who have applied sign a document, encryption bind the identity to that document. And finally, when the receiver again I lost the connectivity. My screen is visible or not? Yes, ma'am, it's visible. It's visible. Okay. So when the receiver open the document, system automatically verifies whether the signature is valid or not. All things are automatically. Any changes you can not do anything, any updation you cannot do. So all signatures are in encrypted form and binding with your identity with your documents. So this entire process happens automatically. No human verification is needed at all. Okay, so this is the process how you can get your certificates, sorry, digital signatures. Ma'am, is biometry a digital signature? The thumb expressions. These are not digital signatures. Digital signatures actually is जहां पर आपने पेपर पर साइन किए हैं in the form of digital, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में सिग्नेचर आपके डिजिटल सिग्नेचर होंगे। बायोमेट्रिक इज योर एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर लाइक आई, आपके रेटिना का इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशंस हैं, फिंगर्स का इम्प्रेशंस हैं, योर ओवरऑल आइडेंटिटी है। मैम, इसको आप एक इमेज एग्जांपल से दिखा सकते हो? दोनों में डिफरेंस कर सकते हो, स्कैन्ड इमेज और डिजिटल सिग्नेचर को एक प्रेजेंट से? यस यस प्लीज, यस प्लीज एक्सप्लेन। स्कैन सिग्नेचर वो होता है जो आपने अपना नाम लिखा एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे, और आपने उसको अपलोड करवा दिया कि भैया इसको स्कैन करके अपलोड कर दो। वो होता है आपका खुद का रियल सिग्नेचर जो आपने अपने हाथ से किया है, वो स्कैन सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर होता है जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आप जो अभी इंडिया में सर्टिफाइंग अथॉरिटी है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, आप उनके पास जाओगे कि मुझे अपने ऑफिशियल वर्क्स के लिए अपना एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करवाना है, प्लीज उसको क्रिएट कर दो। फिर वो आपके नाम के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आपको अलॉट होगा। जैसे हर किसी का एक बायोमेट्रिक अलग होता है, आइडेंटिटी अलग होती है, ऐसे ही हर पर्सन का एक अलग डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है, उसके बाइनरी नंबर्स अलग होते हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। जो होता अपने स्कैन सर्टिफाइंग इमेजेस जैसा अथॉरिटी है, अपने हमारी नाम जैसा ही होता है। नहीं, हाँ, हाँ, मतलब वो आपको आप नाम, जैसे आपका कुछ भी XYZ, मेरा नाम रितु यादव है, तो मैं अगर अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करूंगी तो वो मेरे डिजिटल सिग्नेचर को किसी बाइनरी नंबर में क्रिएट करके देंगे, बट उसके ऊपर नीचे, जैसे आपने देखा होगा किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट का आप कुछ भी करते हो तो उसके नीचे जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके नीचे एक बाइनरी पैटर्न होता है, हाँ, वो स्टार्स लगे डिजिटल होते हैं, स्टार्स सिग्नेचर या कुछ होता है। इस तरह का होता है। हाँ हाँ, एक बाइनरी पैटर्न होता है और उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। और इसको सर्टिफाई अथॉरिटी ही मतलब हमें अथॉरिटी जो होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी वही अलॉट करती है इसको, ऐसे ही किसी का भी क्रिएट नहीं होता है ये। यस एग्जैक्टली, आप ये कहीं से नहीं बनवा सकते। जो सर्टिफाइड वैलिड अथॉरिटी सेंटर होते हैं, जैसे आपके आधार के सेंटर होते हैं, आधार आप कहीं सब जगह नहीं बनवा सकते हैं ना, तो ऐसे ही आपके ये अथॉराइज्ड सेंटर्स होते हैं जहां पर आप बना सकते हैं। अब आपको
क्लियर रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो मोर सिक्योर है। डिजिटल सिग्नेचर आपके सेम सिग्नेचर शो होते हैं, जैसे कहीं पे डॉक्यूमेंट पे साइन होगा वो आपको शो सेम साइन की तरह ही होगा। गॉट इट मैम, गॉट इट। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता, ठीक है। अब जैसे आप फोन से कोई फोटो ले रहे हो, फोटो लेकर आप उस फोटो को जैसे सपोज करो मैंने, तो वो क्या हो गई, स्कैन कॉपी हो गई, ठीक है ना। स्कैन कॉपी को हम कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट डिजिटल सिग्नेचर यू कांट डू एनी मॉडिफिकेशन। क्लियर ये नाउ? मैम अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स पर भी होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर्स पर जो नीचे साइन होते हैं साइनिंग अथॉरिटी के, वो भी शायद डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका वो अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से है। वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, इवन कंपनीज यही यूज करते हैं। हायर अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी तो यही यूज करते हैं, जहां पर मेन सिक्योरिटी पर्पस रहता है, ठीक है, लीगली ऑथेंटिकेशन रहता है, वहां पर हर जगह डिजिटल सिग्नेचर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। ओके ओके मैम, ओके मैम। स्पेशली मैम, स्पेशली इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर हम कोई फॉर्म 16 डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर रिक्वायर्ड होता है डिजिटल सिग्नेचर, तभी Yes, वो yes. वैलिड डॉक्यूमेंट बना। यस मैम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस ज्यादा रहते हैं वहां पर तो मेनली यही होता है, ठीक है। गॉट इट। मैम ये इजीली कॉपी भी तो हो जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं कर सकते हो आप डिजिटल और ये सिग्नेचर्स कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी नहीं यूज कर सकता है। लाइक जिस पर्सन ऑथोराइज सिग्नेचर है, ओनली दैट पर्सन कैन यूज इट। ओके मैम। So why digital signatures are important? So अगर एज अ रिसर्च स्कॉलर की बात करें, यू कैन नॉट एस्केप डिजिटल सिग्नेचर्स। यू नीड डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर योर ऑनलाइन थीसिस वर्क, ऑनलाइन थीसिस सबमिशन, कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म्स में आपको चाहिए होंगे, ठीक है। प्लेगरिज्म डिक्लेरेशंस में, फंडिंग एप्लीकेशंस में आपको भी इन सब की जरूरत पड़ेगी। सो यूनिवर्सिटीज नो लॉन्गर एक्सेप्ट फिजिकल सिग्नेचर्स फॉर ऑनलाइन पोर्टल्स। ऑनलाइन पोर्टल्स में तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स। So digital signatures basically ensure your trust, authenticity, मैम लॉस्ट योर। or documents. Yeah, there is a network issue. ओके। I was saying, like, अगर आपने if you sign any document, so that means that particular documents belongs to only you, ठीक है, you can't deny. Clear? यस मैम। Okay, so next, after digital signature, next is your Shodh Ganga. There are two terms, Shodh Ganga and Shodh Gangotri. तो आप सबने सुना है ये वर्ड्स, टर्म सुनी है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So Yes, now ma'am. we move to an extremely important national resource for PhD scholars. That is your Shodh Ganga. Shodh Ganga basically is a digital repository of PhD thesis submitted to Indian universities, and it is maintained under the University Grant Commission by means UGC. So every university in India is required to upload PhD thesis to Shodh Ganga after award of degree. Okay, so Shodh Ganga basically represents completed PhD research in India. जो आपकी PhD complete हो चुकी हैं और जिनको award हो चुकी हैं, वो सारी PhD आपको शोध गंगा पर मिलेंगी, और that is mandatory for all universities to upload PhD thesis on शोध गंगा, ठीक है। जैसे ही आपका PhD वाइवा होगा, आपको अवार्ड होगी PhD,
डिग्री, तो आपसे यूनिवर्सिटी और जो भी आप जहाँ से कर रहे हैं, तो दे विल डिमांड द सॉफ्ट कॉपी एज वेल अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, ठीक है, टू अपलोड ऑन शोध गंगा। सो नेक्स्ट स्लाइड। मैम ये शोध गंगा इनफ्लेबनेट क्या होता है मैम? इनफ्लेबनेट सेंटर यूजीसी आपने देखा? ये बेसिकली यूजीसी अप्रूव्ड है, ओके। कोई एप्लीकेशन है मैम इनफ्लेबनेट? दिस इज एन अथॉरिटी, ओके अथॉरिटी मैम। है, यूजीसी अप्रूव्ड अथॉरिटी है जो आपका ये सारा टेक केयर करता है शोध गंगा पर पीएचडी अपडेशन का, अपलोडिंग का, ठीक है, दैट इज एन अथॉरिटी। ओके थैंक यू। सो वेलकम। हाउ टू यूज शोध गंगा? तो आप लोग अभी न्यू स्कॉलर्स हो, सभी आप अपना अकाउंट क्रिएट करें सभी जगह जहां जहां आप जो भी पढ़ रहे हैं। गूगल से अपना गूगल लॉगिन है आपका, सभी गूगल लॉगिन करके शोध गंगा एक्सेस करें, शोध गंगोत्री एक्सेस करें, ठीक है, और गूगल स्कॉलर पर अपना अकाउंट बनाएं। तो आप अभी से ये सब काम करके रखें। तो शोध गंगा पे हम रिसर्च पेपर असेस कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। उसमें आप ईयर वाइज देखेंगे, अपना टॉपिक वाइज भी आप किसी का सर्च कर सकते हैं, इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप कोई भी थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। मैम शोध गंगा में, एक्सक्यूज मी मैम, शोध गंगा Yes. में डायरेक्ट लॉगिन अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं? आपको देखो सेपरेट लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई भी साइट ओपन करते हो, इट विल आस्क टू साइन इन बाय यूजिंग योर गूगल स्कॉलर आईडी और गूगल आईडी, और इवन देयर इज एन ऑप्शन टू क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। तो नई आईडीज हर पोर्टल पर बनाना इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप अपना गूगल से साइन इन कीजिए हर जगह, तो आपका वो ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सब जगह, ठीक है। आपकी एक आईडी है, उससे सभी जगह आप एक्सेस करें, तो आप फ्यूचर में वो भूलेंगे भी नहीं। एक ईमेल आईडी से करेंगे सभी जगह, तो पासवर्ड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको एक्सेस करना इजी रहेगा। वो तो क्रिएट कर लिया है गूगल स्कॉलर भी, और आपका ऑर्किड आईडी और IEEE से भी कर लिया मैम। हाँ, आप एक आईडी से बना के रखें, ठीक है, एक आईडी से सभी आप पोर्टल एक्सेस करें और उसी को यूज करें। मैडम ये शोध गंगा पे अकाउंट नहीं बन पा रहा है, मैंने ट्राई किया था, वो नहीं बन पा रहा है मैडम। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? वो कह रहे हैं सिर्फ कॉलेज वाले ही अपलोड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। यू हैव नॉट ऑथराइज्ड। अपलोड नहीं करना है, यू हैव टू डाउनलोड, नॉट अपलोड। अपलोड यूनिवर्सिटी से नहीं होता है, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम अपने रिसर्च किसको देंगे, कॉलेज वालों को? यस, आपको कॉलेज वालों को सबमिट करना है, आपको शोध गंगा पर कुछ अपलोड नहीं करना है। यू ओनली कैन डाउनलोड। थैंक यू। अपलोड होता है जो आप उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं साइट को। डाउनलोड मींस आप एक्सेस कर रहे हो, आप वो चीजें अपने फाइल मतलब अपने पास सेव कर रहे हो चीजें, तो आप अपलोड नहीं कर सकते। वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज कोई अथॉरिटी होती है अपलोड करने की, ठीक है। आपने उस पर अपलोड कुछ नहीं करना, आपने अपना फील्ड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पर आप जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, वहां पर कोई आप स्पेशल टाइटल भी लिख सकते हैं उस टाइटल से, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे पेपर, सारे थीसिस आपको एक्सेस हो जाएंगे। ईयर वाइज भी आप कर सकते हैं, ऑथर वाइज भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स आपको डॉक्यूमेंट शो होंगे। तो आपने जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि इसकी मेरे को जरूरत है, आप उसको पहले रीड भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए वैल्यूएबल है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, यस मैम, थैंक यू। so for this you have to first open Shodh Ganga portal,
Okay. Secondly, search by subject. You can search by university name, even your by guide name, or keywords you can use. Keywords means, for example, computer science or like AI. एंड एआई में क्या है, आपका साइबर सिक्योरिटी करना है, इस तरीके से आप छोटे छोटे कीवर्ड्स डालकर भी सर्च कर सकते हैं. Then after searching, you can download the full PhD thesis, or you can download single chapter, whatever you want. Then you can carefully study the literature review and research method. A lot of literature reviews and research methodology and lot of theses according to your field are there. That's why it is thesis repository. So identify what research gaps are already addressed and what gaps still remain. Okay, read a lot of papers, you can identify research gaps. So one more Excuse me, thing. ma'am. So, Ma'am, yes, please. What is the ma'am, difference just between say Shodhganga and Shodhgangotri, ma'am? Let me continue, I will explain everything. Okay. अभी तो मैं शोधगंगा Okay, ही okay. आपको बता रही हूँ, शोधगंगोत्री पर आने तो दो मुझे. Sure, ma'am. Sure. Thank you. Okay. So शोधगंगा basically is not for copying everything. ठीक है, ये नहीं है कि आपको PhD की थीसिस वहां पर मिल गई, even you can download everything. So this is not for copying the chapters or PhD thesis. It is for basically understanding the structure, approach and research depth. Okay, कि किसने क्या काम किया है, क्या रिसर्च गैप्स हैं, किस तरीके से थीसिस लिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या अप्रोच है, कितने डेप्थ तक किसी ने रिसर्च की है. सो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है. अपने पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आप यहीं से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको रीड आउट कर सकते हैं, और बिलो द एवरी पेपर अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस आर देयर. ठीक है, 20 to 40 सभी. ठीक है, तो आपको कॉपी नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है चीजें है क्या. सो what are the benefits, or you can say importance for Shodhganga, importance of Shodhganga for research scholars. So Shodhganga basically help scholars in many ways. It prevent duplication of research topics. अगर एक टॉपिक से ऑलरेडी रिसर्च हो गई है तो आप सेम टॉपिक नहीं लिख सकते हो. यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन इन योर टाइटल और इन योर टॉपिक. It improves the quality of literature review. It helps promote transparency. Now it is okay? Am I audible? Yeah. Yes, Now ma'am. Okay. Yeah. Okay. Yes. So it helps scholars. Okay, so it helps scholars to understand how a full PhD thesis is written, chapter by chapter, how to write, how to submit, all things you can get on this portal. So it also promotes transparency and ethical research practices. Clear? So अब Excuse me, ma'am. बात करते हैं. Yes. Excuse me, ma'am. मैम शोधगंगा पे Yes. सिर्फ थीसिस ही होंगी कि रिसर्च पेपर्स भी होंगे वहां पर दूसरों के? रिसर्च पेपर्स ही Hello. होते हैं. देखो, थीसिस क्या होती है आपके अकॉर्डिंग, थीसिस क्या है, आप मुझे ये बताइए. मैम जो हम लोग जैसे पीएचडी में सबमिट करते हैं, पूरी रिपोर्ट हो जाएगी ना, पूरी उसकी, वो तो एक हम लोग की जो भी रिसर्च है उसकी पूरी रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट हो गई. रिसर्च तो वो अलग अलग टॉपिक्स पे भी हो सकती है. नहीं, पहले आप ये चीज क्लियर करें. देखो, थीसिस क्या होगा आपका, एक कंप्लीट रिपोर्ट है. ठीक है, बेसिकली थीसिस में क्या होता है, थीसिस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. उसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर लिखने होते हैं. ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जो आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे, 6, 7, 8 चैप्टर्स होते हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ दोस चैप्टर्स इज नोन एज थीसिस. ठीक है, तो उन चैप्टर्स में होता क्या है,
आप जब भी रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च गैप आप समझते हैं? रिसर्च गैप मींस जो पहले काम हो चुका है, ठीक है, उसमें जो कमी रह गई है, दैट इज योर रिसर्च गैप। ठीक है, हाँ, दैट इज योर रिसर्च गैप कि किसी पर्सन ने ये पर्टिकुलर काम किया है, इस पे रिसर्च की है, तो इस मेरे अकॉर्डिंग ये रिसर्च ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये कमी रह गई। ठीक है, दैट इज रिसर्च गैप। और यू कैन से अगर किसी ने कोई काम किया है, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं कि किसी ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की है और उसका रिजल्ट आया है 97%, ठीक है, तो आई अश्योर कि मैं इस 97% रिजल्ट को 99 तक लेकर आ सकती हूँ। दैट इज अनदर रिसर्च गैप। ठीक है, तो आपके ये चैप्टर्स बनेंगे, अलग अलग चैप्टर। आपका सभी का फर्स्ट चैप्टर होगा लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में यही होता है कि आपने कितने लिटरेचर्स पढ़े हैं, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है रिसर्च गैप, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेनली डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। आइडियली 4 ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं हम। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा थीसिस का। सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, और यही ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं। आपका फर्स्ट रिसर्च पेपर होगा लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है, कि आपने पेपर पढ़े, आपने ये गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की, जो आप पूछ रहे थे कि रिसर्च पेपर हैं या थीसिस हैं। वो रिसर्च पेपर्स ही होते हैं, चैप्टर्स। ठीक है, वो काम ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश पेपर होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट इज योर शोध गंगोत्री। शोध गंगा में क्या था, आपके जो कंप्लीट पीएचडी हो चुकी हैं वो सबमिटेड हैं बाय यूनिवर्सिटीज। शोध गंगोत्री is basically a repository of approved PhD research synopsis. ठीक है, synopsis आप जो सबमिट करेंगे, synopsis समझते हैं आप? आपका synopsis होता है बेसिकली आपका एक ड्राफ्ट ऑफ थीसिस, इनिशियल रिपोर्ट कि आप क्या काम करेंगे। ठीक है, तो जो वो अप्रूव्ड पीएचडी रिसर्च, यस प्लीज। It's a blueprint of thesis, na? What we Yes. have done do in future. Yes, exactly. So that is a repository of approved. I am focusing on this word, approved PhD research synopsis. ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी से जो आपका साइनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गया है वो रेपोजिटरी पर जाएगा। कौन सी रेपोजिटरी पर? शोध गंगोत्री। So it contains basically ongoing research proposals, and it helps scholars track current research trends, what's going on, what's research work is going on in Indian universities. Okay, so don't confuse between the Shodh Gangotri and Shodh Ganga. Shodh Gangotri basically does not contain completed thesis. Shodh Gangotri contains only approved PhD research synopsis. Okay ma'am, got it. Ma'am, your voice is not audible. Now clear? Yes ma'am. Okay, so now how Shodh Gangotri helps scholars? Shodh Gangotri basically helps scholars to understand what research is currently going on, and it helps to avoid choosing a topic, basically that topic that is already under progress. So you can do modification, you can identify the topics
by exploring the Shodh Gangotri. So it helps you refine your problem statement. It also helps supervisors and scholars to understand national research trends कि trend में क्या चल रहा है, क्या अभी वर्क हो रहा है, कौन से टॉपिक पर क्या रिसर्च हो रही है. Okay, so ideally you can choose your topic. Now the difference I already have explained. Shodh Ganga is for completed PhD research. Shodh Gangotri is for ongoing PhD research, and both together help in maintaining research quality and avoid duplication as well. Okay, so I think yes, last topic, that is your RNET, ERNET. What is it? This is basically education and research network, which most scholars use daily but never realize. So what is it? It stands for Education and Research Networks. It provides basically network and internet infrastructure to educational and research institutions in India. ठीक है, जो भी आप नेटवर्क और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, so ARNET provide that facility. So what is the role of ARNET in research ecosystem? So we can say it is the backbone of digital research. It enables access to online journals, databases and repositories. ये बेसिकली क्या होता है, कुछ आपके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स फ्री टू एक्सेस होते हैं, आप कहीं पर भी अपने इंटरनेट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. बट जो कुछ पेपर्स होते हैं आप यू कैन एक्सेस ओनली थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो कुछ पेपर्स को एक्सेस करने के लिए आपको वहीं के ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है. ओनली देन यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर पेपर्स. सो आरनेट वो एक बैकबोन है डिजिटल रिसर्च के लिए जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. So it enables access to your online journals, your databases, your repositories. So it supports online classes, webinars, research collaborations, and without ARNET and similar academic networks, digital research infrastructure would collapse. पॉसिबल नहीं है कि आप उसको ऑनलाइन क्लासेस आप लगा सकें, वेबिनार लगा सकें, ऑनलाइन पेपर्स आप एक्सेस कर पाएं. So ARNET is backbone. So we have done digital signatures that ensures authenticity. Shodh Ganga we have done that ensures transparency. Shodh Gangotri done that ensures originality. And last topic was ARNET that ensures connectivity. So together these form the digital foundations of modern research. ये सारे जो terms हैं ये form करते हैं digital foundations of modern research. Okay, so that's all for today. Is there any query you can ask? Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, please. How we can set our objective? ऑब्जेक्टिव्स तो हम कैसे सेट कर सकते हैं? कोई बेस्ट ऐसा कौन सा वे है कि ऑब्जेक्टिव सेट हो? क्योंकि हम कभी भी कुछ सर्च आउट करते हैं, हर एक ने किसी न किसी टॉपिक के ऊपर तो काम किया ही होता है. देखो सभी ने काम ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करें? इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लिटरेचर्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है, जस्ट अ मिनट. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया आइडेंटिफाई करें. ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है. उसके बाद
आप एक पर्टिकुलर एरिया जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज आप पेपर सर्च करें। ठीक है, गूगल स्कॉलर पर आप ओके सर्च करें और आप शोध गंगा पर उससे रिलेटेड वर्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन पेपर्स को आप पढ़ना शुरू करें। जितने पेपर स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअल में वर्क करना है। आप उन पेपर्स को समझें। ठीक है, मेनली आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप क्या रीड आउट करें, उसका पेपर का एब्स्ट्रैक्ट रीड करें और लास्ट में कंक्लूजन रीड करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 पेपर्स लो इनिशियली, 10 पेपर्स के आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, कंक्लूजन पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट से क्या होगा, आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि इस पेपर में क्या है। कंक्लूजन से आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस पेपर का। ठीक है, आप एक पेपर वाइज नोट डाउन करें कि इस पेपर में इसमें ये काम हुआ है और ये कंक्लूजन था, सेकंड पेपर में ये हुआ है उसमें ये कंक्लूजन था। तो आपको कुछ ना कुछ जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको आइडेंटिफाई होनी शुरू हो जाएंगी चीजें कि अच्छा इस पेपर में ये काम हुआ है, ये ऐसे भी हो सकता था या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको ठीक है रिसर्च गैप मिलने शुरू हो गए कि इसमें ये कमी है और उन्हीं गैप को फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई ठीक है। आपने कमी और ढूंढी ये उसको मैंडेटरी है कि अचीव करना इज योर ऑब्जेक्टिव। ओके क्लियर? मैम, और ये मैंडेटरी है कि हमें 4 ऑब्जेक्टिव भी सेट करने हैं, 4 से कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं? वो मैंने यही बोला 4 से ज्यादा तो नहीं होते, देखो नहीं करने भी नहीं चाहिए, वो आपका ही काम बढ़ेगा। ठीक है, कम हो सकते हैं, दैट और 4 डिपेंड्स से ऑन कम? योर डिपार्टमेंट, नॉट डिपार्टमेंट, ऑन योर गाइड। ठीक है, आप अपने ओके गाइड सर, के ओके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं। ओके मैम। Ma'am, could you please share the yesterday's and today's PPT in the group? Yes, definitely I will share. After this class I will share both PPTs. Thank you, ma'am. एक्सक्यूज मी Anything मैम, else? Yes. मैडम गाइड सिलेक्ट करना कंपलसरी है गाइड क्या? के लिए आपको हाँ जी, विदाउट गाइड तो आपकी पीएचडी नहीं होगी। गाइड तो इवन गाइड को गाइड गाइड ने अगर मना कर दिया आई देखो एम नॉट सिलेक्टेड टू यू तो क्या करें? जस्ट एक क्वेश्चन है। नहीं, गाइड तो कोई ना कोई आपको मिलेगा। ठीक है, गाइड मना करें या आप मना करें, दोनों मैंने के कल पास 5 बंदों को बोला था, मैंने कल 5 बंदों को बोला, पांचों ने मना कर दिया। अब नेक्स्ट नहीं है। प्रोसेस क्या है? अभी आपका प्रोसेस ये है, अभी आपका कोर्स वर्क होगा, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ गाइड्स विद कांटेक्ट नंबर आपको मिलेगी। ठीक है, और आप अपने लेवल पर भी डिपार्टमेंट के गाइड्स जो भी आपको लगता है कि मैंने इनके अंडर काम करना है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक तो है, कॉलेज मैम प्रोवाइड ऑलरेडी कराएगा मेल ना? मेल पे यस हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, ऑलरेडी ये मेल पे शेयर हो गया है गाइड नेम्स। तो ये MST 1 से पहले हमें सेलेक्ट करना है, सच ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमें हाँ दिया गया था। आप डेडलाइन देखें, उसमें अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करें। अगर वो डिनाई कर देते हैं तो जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल HODs होते हैं वो आपको कोई ना कोई गाइड असाइन जरूर करेंगे। ठीक है, विदाउट गाइड तो आपकी राइट, पीएचडी नहीं होगी, तो कोई ना कोई आपको मिलेगा। वो ये हो सकता ओके है कि आपकी चॉइस का नहीं हो, बट मिलेगा जरूर। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैम, मोर देन वन गाइड अलॉट हो सकते हैं? जैसे हमने एक से ज्यादा यस, तो आप कर 2 और सकते 3 हैं। गाइड्स। 2 और 3 गाइड्स तो आई विल नॉट रिकमेंड। ठीक है, एक गाइड तो आपको जहां से आप कर रहे हैं वहां से आपको गाइड मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इन केस आपको लगता है कि वो मैं उनके साथ मतलब कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं मिल रहा है, तो आप किसी को को गाइड भी असाइन करवा सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। बट ये मैम, आपको एक्सक्यूज मैम, श्योर करना पड़ेगा। इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो गाइड और को गाइड होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी कोप अप होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप दोनों के बीच में पिसकर रह जाओगे कि गाइड ने कोई और काम किया है किसी और वे से और को गाइड ने किसी और वे से। तो आपको गाइड की परमिशन से ही को गाइड असाइन करवाना है, ओके नहीं तो मैम, बहुत थैंक एक्सक्यूज मी आगे मैम, नहीं होगा। यस, पेपर का एग्जामिनेशन कोर्स वर्क कब से स्टार्ट होगा? वर्क मैम मेरे ये को कोर्स वर्क का कंफर्म एग्जाम कब है?
देखो मेरे को अभी कंफर्म करना पड़ेगा, अभी कोई अश्योरिटी नहीं है, बस अभी यही पता है कि जनवरी मंथ में होगा। एग्जैक्ट डेट जो है वो आई विल ट्राई टू कंफर्म। Yes, please. तो 4-5 महीने हो गए, कोई अपडेट ही नहीं आया अभी तक। सितंबर में ये एडमिशन हुए थे हम लोगों का पीएचडी में। दिसंबर एंड Excuse में me, जनवरी ma'am. We have a class now. Okay, all of you can leave. Thank you so much. Excuse me, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank I have one Thank you, question. ma'am. you. Okay.